The velocity of an object at rest is always zero. ZERO is always zero. Second point, it does not change with time. It does not change with time. Hence it is considered to be uniform. आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और क्लैरिफाई द डिफरेंसेस डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में है ना. डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. वो करोगे या मैं दूँ? चलो लिखो. Difference between distance and displacement. Left hand side is distance, right hand side is displacement. Left hand side is distance, right hand side is displacement. The first point is left hand side. First point, distance is the length of the actual path. Distance is the length of the actual path traveled by an object in motion while going from one point to another. While going from one point to another. Right hand side, first point, displacement is the minimum distance. Displacement is the minimum distance between the starting and finishing point. Between the starting and finishing point. Left hand side, second point, left hand side, the second point, distance is a scalar quantity. Right hand side, displacement is a vector quantity. VECTOR. स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? स्केलर gives only the quantity. Vector will also give you the direction. So displacement is a vector quantity. Third point,
Shall I continue? Third point, it does not have direction, left hand side. It does not have direction. Right hand side, it has direction. Fourth point, आराम से लिखो, अगर मैं फास्ट हूँ तो बोलो मुझे, I'll go slow. Next point, left hand side, it is never zero. It is never zero. Right hand side, it can be zero. That is all. Now the next differentiate between second one, uniform motion and non-uniform motion. ये भी आपके पास उसे ना, तो फिर लिखो, है, बोलो. Left hand side is uniform motion and right hand side is non-uniform motion. मैम मैं बोलूं? बोलो बेटा. Uniform linear motion. The motion of the body along a straight line which covers equal distance in equal intervals of time is called uniform linear motion. करेक्ट. हम बोल रहे हैं आपके पास डिफरेंशिएट है क्या? दोनों डिफरेंशिएट है? हाँ वही है. हाँ बोलो. राइट हैंड साइड. Non-uniform linear motion. The motion of the body along a straight line which covers unequal distances in equal intervals of time is called non-uniform linear motion. Okay. Second point. Second point, distance time graph for uniform motion is a linear graph. Second point, in non-uniform linear motion, distance time graph for non-uniform linear motion is not a straight line. Okay. Third point. तो ये नहीं, तीन है. The acceleration is constant for body having uniform linear motion. The acceleration is different for body undergoing non-uniform linear motion. ओके. चलो करेक्ट है सब. आप लोग लिखो. चलो फर्स्ट पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal time intervals, it is said to be moving in uniform motion. Right hand side, if an object covers unequal distance in equal time intervals, it is said to be moving in non-uniform motion.
second point, left hand side. In this case, the speed of the body is constant. Right hand side, in this case, the speed of the body is not constant. The speed of the body is not constant. Third point, the graph between distance and time, is a straight line. Right hand side, the graph between distance and time is not a straight line. Is not a straight line. लिख रहे क्या ज़हीर? तुम लिखे ज़हीर? ओके, दैट इज़ ऑल फॉर दैट डिफरेंशिएट. अभी हम सम्स करने वाले हैं. और आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दूंगी, आपको वो प्रिपेयर करने होंगे फॉर योर स्मॉल टेस्ट विच वी विल हैव. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देती हूँ. राइट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. डिफाइन मोमेंटम. डिफाइन लिखो, उसके नीचे नंबर 1 लिखो मोमेंटम, उसके नीचे सेकंड लिखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. थर्ड लिखो वेक्टर क्वांटिटी. फोर्थ लिखो डिस्प्लेसमेंट. फिफ्थ लिखो डिसिलरेशन. DECELERATION, डिसिलरेशन. एंड ऑल्सो द फिल इन द ब्लैंक्स. जो फोर्थ है ना, पेज नंबर 17 पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो ये सब आपको होमवर्क के लिए करना है. फिर हम कल ये करेंगे, या तो फिर मैं डायरेक्टली टेस्ट दूंगी. ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी. और पहले तो हम ये कर लेते हैं.
मैच द फर्स्ट कॉलम विद द थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट क्वेश्चन वाला, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी. तो क्या क्या मार्क किया आपने एक्सरसाइजेस में? क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, 2 हमारा हो गया है, थर्ड हमने किया नहीं है वो छोड़ो, फोर्थ आपको करना है, फिफ्थ हमने कर दिया है, और सिक्स्थ भी आप ट्राई करो. गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन सराउंडिंग एंड गिव द एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. वेरी इजी, वो भी करो. ये सब सर्कल करो. किस किस को सर्कल करोगे? 1, 4 एंड 6. ठीक है. 2 और 5 हो गया है, 3 हमने किया नहीं है, 7 हमने किया नहीं, वो अभी हम करेंगे. तो उसमें से 7th में जो ए सम है, अच्छा ये क्या है थर्ड जो है, आपको इसमें ना फॉर्मूला यूज़ कर करके करने हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, थर्ड वन. वो भी मैं आपको ना, अगर 7 आपने कर लिया अच्छे से तो मैं थर्ड वाला भी होमवर्क के लिए बोलूँगी. थर्ड इज़ वेरी इजी, क्योंकि इसको सिर्फ आपको एक ही टर्म फाइंड करना है, फॉर्मूला में आपको सब्सटीट्यूट करना है. बहुत ईजी है. समझ रहे आप फॉर्मूला में कैसे करना है? दे हैव गिवन यू, दे हैव गिवन ए, दे हैव गिवन टी, तो आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फाइंड करना है. चलो करो, कंप्लीट द फॉलोइंग करो. चलो फर्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन अभी कर लेते. चलो नहीं दो ना, तुम लोग सब पेंडिंग रखोगे. कंप्लीट द फॉलोइंग, थर्ड वन. UAT और V, और फॉर्मूला क्या है बोलो? दिया है वहां पर फर्स्ट फॉर्मूला. कोई भी अनम्यूट करके बोलो. U 2 मीटर पर सेकेंड है. फॉर्मूला V इज इक्वल टू, अच्छा, इक्वल्स टू U प्लस AT. यस. किया ना हमने उस दिन फर्स्ट इक्वेशन, वही है. आयशा यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस, ठीक है. इन द मीन टाइम हम कब रिविजन करेंगे तब तक के, और टाइम है ना, तब तक के आप पुराने वीडियोस देखो. हाँ ठीक है. तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है. तो अभी u क्या दिया है हमको, जल्दी जल्दी भैया टर्म्स बोलो. u इज 2, इज 2 मीटर पर सेकेंड. 4 है ना नेक्स्ट. t इज कितना? 3. 3 is equal सेकेंड. to question mark. So v is equal to u plus at. Therefore v is equal to 2 plus 2 into 3. 2 plus 6, 8. तो वो टेबल बनाना है और उसमें डालते जाना है. नेक्स्ट वाला कौन करेगा, जल्दी बताओ. सेकंड का आंसर क्या है? उसमें u फाइंड करना है. 2 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड आंसर. ओके, u इज इक्वल टू क्या आएगा? हाँ, सेकेंड में u इज इक्वल टू b माइनस 80 ना. व्हाट इज a? 5. t is 2, b is 20. आपको कितना मिला? Who said the answer? Afan, you said. What is the answer? 2 मीटर पर सेकेंड. 2 कैसे आएगा?
अरे अच्छी बनी क्या पूछ रहे हैं? हाँ बोलो, अच्छी बनी। अरे हाँ 10 क्या सवाल पूछते हैं क्या? नेक्स्ट, थर्ड वाला कौन ट्राई करेगा? इसमें आपको सेकेंड फॉर्मूला यूज करना है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें V नहीं होगा। U कितना है? 5, 8, 12, T3, 5, 12, 3। करो जल्दी जल्दी। 69 meters. Let me check. I'm not done. 69 meters है ना? 69? मेरा तो अलग आ रहा है। हाँ क्यों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? ए फाइंड करना है। है ना? तो इट विल बी S minus ut is equal to half a t square. Therefore, S minus ut the whole thing multiplied by 2 divided by a is equal to, sorry, 2 divided by t square. क्या फाइंड करना है? a ना? क्या फाइंड करना है? a। हाँ, तो फिर हम a इस एक साइड लेते हैं अपॉन t square. So what is your u with what is your S? 92 minus what is u? 7. What is t? कौन कर रहा है फास्ट? 8 meter per second square. Answer. अच्छा, तो पहले किया था कह रहे कितना फास्ट किया? अपॉन टी स्क्वायर. व्हाट इज टी? 4 ना? कितना आया बेटा? 8 8 ना? करेक्ट? 8 meter पर। करेक्ट. आप लोग मेरे साथ लिखते जाओ फास्ट. आयशा यू आर राइटिंग. नताशा
आप लोग सब थम्स अप भी किया तो चलेगा, और म्यूट कर लो। नेक्स्ट पे जाए। नेक्स्ट में हमने नया फॉर्मूला यूज़ करना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कर लिया अपन? वी स्क्वायर इज इक्वल टू, वी स्क्वायर ही दिया है, 10, पहला वाला क्या 8 है, सॉरी। थ्री एंड 4 करो सॉल्व। एट मीटर्स। 8 कैसे? यस मैम 8 है। क्योंकि आपने वी स्क्वायर को 8 लिया, क्या वी को 8 लिया? मैम वी वी को स्क्वायर। 8 लिया, वी। वी स्क्वायर है ना बेटा वी वो कॉलम, हाँ तो मैम 64 होगा ना 8 स्क्वायर। बट कॉलम के ऊपर वी स्क्वायर लिखा है ना। ठीक है, तो कितना होगा? 64 माइनस 16 इज हाउ मच? 48। ठीक है, नेक्स्ट है अगेन विथ 10। अभी क्या फाइंड करना है? यू। S is 8.4, A is 5। What is 100 minus 84?
ये 8.4 को मैंने ना 84/10 किया तो बहुत इजी हो गया, नहीं तो आप उसको 10 करते, 10 माइनस 10 इंटू 8.4, फिर वही होता ना 84। Now we'll go to the first sum. Solve the following examples. An object moves 18 meters in the first 3 seconds. You can write page 70, question number 7a. An object moves 18 meters in the first 3 seconds, 22 meters in the next 3 seconds, and 14 meters in the last 3 seconds. What is the average speed? गिवन लिखो, तीन बार आपको फाइंड करना है आपका स्पीड। So in first case 18 meters in 3 seconds. So what is the speed? Distance upon time 18/3, which is equal to 6. So ये होगा 6 in the first case. Second case में क्या है? D is equal to 22 meters in 3 seconds. So what is the formula? Speed is equal to distance upon time, 22/3. (7.33). और थर्ड केस में क्या है? 14 meters in the last 3 seconds. (4.66). So you have to find the average